topics that you generally study in this chapter, our topics would be, number one, we'll start with work, and then we will have a dive into energy, and then we will have a dive into power. Mota mota dekhe to. Okay? So let us start with the first topic, that is work. The way we are revising, we are thinking that you have some basic idea about it. And if at any portion you find that whatever sir is saying is Greek, Hebrew and Latin, you are not understanding, रोक दो गाड़ी, इसके बाद और नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम ही नहीं है, ठीक है ना, राइट। तो आइए पॉइंट्स लिखते जाइए और आते हैं, शुरू करते हैं वर्क के ट्री को समझने के लिए। कुछ चीजें लिखते हैं। वर्क, सबसे पहले वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। You know what is the scalar quantity? A scalar quantity is a quantity which has only magnitude but does not have any direction. मतलब वर्क एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी पैदा होता है बाय अ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। So what is a scalar product? A scalar product is also known as a dot product. और ये डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में होता है? दिस डॉट प्रोडक्ट इज बिटवीन टू वेक्टर्स। सो द टू वेक्टर्स विल बी फोर्स, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो फोर्स इज अ वेक्टर एफ एंड इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है विद अनदर वेक्टर एस। फोर्स इज अ वेक्टर, हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, and displacement has both magnitude and direction. We are doing a dot product of two vectors. As we know, vectors को दो तरह से multiply कर सकते हैं। Vector, अगर यहाँ भी थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, if you have a vector, if you have vectors, so let's say we have got two vectors, A vector and B vector, इनके दो तरह के multiplication हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं cross product और एक को हम कहते हैं dot product, ठीक है ना। This you'll learn in maths later. A dot product's output will always be scalar. In work, we are actually doing this. A cross product's output will always be a vector. ठीक है? So this will give you a scalar. So f dot s जो है ना, यही होता है आपका work. और now I'm not putting any arrow over w because it is no more a vector. ये vector नहीं है. ठीक है? Scalar quantity, scalar product. Have you understood? Right. Now, the second thing is we'll talk about the unit. So since it has only magnitude, so we should also know what is the unit. The unit of work is joule, which is also written as J. तो अगर कोई आपको बोले 1J define कीजिए, 1 joule of work is said to be done. 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton causes a displacement of 1 meter along the direction of force. इसको मत भूलिएगा, along the direction of force. That displacement cannot be in any other side. That displacement should be along the direction of the force. ठीक है? And a little bit high level, but still we'll understand. Whenever you do a dot product f dot s, this dot product, ये dot product क्या देगा आपको? एक magnitude देगा, and that magnitude will be the magnitude of f vector. Then when you write it in two mods, this is known as the magnitude. We're not worried about the direction. Multiplied by the magnitude of displacement. अब इसमें एक सवाल आता है, सर अगर मैं displacement को पहले लिखूं और force को बाद में लिखूं, will heavens fall? No. Dot product is commutative. आप A dot B करो या B dot A करो, बात एक ही होता है, ठीक है ना। And then it will be multiplied by cosine of the angle. This is known as cos of theta. Cosine of the angle between them. It's a little bit high level. Okay, cosine of the angle between them. So s dot f भी लिखोगे वो भी सेम होता है cos of theta. आइए इस चीज को समझते हैं. So we will take a scenario, and our scenario is something like this, that say suppose force force is in this direction. This is our force vector, right? And then we have got displacement, and displacement is in this direction. So this is displacement vector, ठीक है? So this is my force vector and this is my displacement vector. And this is the angle between the two. This is the angle between the two. Now see, force इस side में है
डिस्प्लेसमेंट इस साइड में है, but the definition of work says work is said to be done, and what is the work? This is ये सुंदर से ये अंगद का कान है, ये अंगद का कान है ना, दिस इज अंगद, उसे कान को हम खींच रहे हैं, तो कान इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं पर अंगद इस साइड आ रहा है, द मूवमेंट ऑफ अंगद इज दिस साइड से सपोज, देन वी से work is said to be done when the point of application of force, that is his ears, move along the direction of force. अब the force इधर तो नहीं जा रहा है, कान इधर आ रहा है. Another example can be baby pulling a toy cart. So we have to find either displacement तो इस डायरेक्शन में है, so we have to find a force which is acting in this direction. जब तक force displacement एक साथ नहीं होगा, work हो ही नहीं सकता है. तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपको पहले क्लास में बताया था, here we actually bring trigonometry into our picture, and what do? We can actually drop a perpendicular out here, okay? And now what is your work done formula we have studied? F into S cos of theta. So let us see what is W, and let us see, we keep the S as separate and see what is F cos theta. F cos theta को देखने की कोशिश करते हैं. What is F cos theta? So if you take cos of theta, then you get what? You get this measurement, let's say OA. So you get OA, and OA is divided by your F. So OA is F cos theta. Means in still little bit high level for your revision, that means this force has how many components? This force has two components. यही आपको पढ़ना चाहिए. The force has got two components. One component in the vertical side and one component along this side, horizontal. While the vertical component is known as f of sine theta, this is known as f of cos theta. तो जब हम work को बोलते हैं ना, work is fs cos theta. See this component of the force. This force is equivalent to two different forces. Same effect. अगर अंगद के कान को इतना खींचो और इतना खींचो, it will be producing the same effect as one force will be producing. Are we fine on this? So work is equal to F cos theta. So the direction of force should be along the direction of displacement. Now there can be three ways. In your grade, we learned three different things. Okay, what are the three different conditions we see? Say suppose theta is equal to 0 degree. What do you mean by theta 0 degree? Sir, my force is in this direction and my displacement is also in this direction. तो इसका value क्या हो जाएगा? Fs cos 0. And in our table we know cos of 0 is equal to 1. इसीलिए ऐसे केस में हम W को क्या लिखते हैं? ऐसे केस में हम W को डायरेक्टली लिख देते. ऐसे केस में चलो ऐसे केस में हम W को डायरेक्टली लिख देते हैं Fs. In your book it will be written like this. But how did that Fs come? It is actually Fs, or this is the mother formula, Fs cos theta. So here cos 0 is equal to 1. ठीक है. एक और सिनारियो हो सकता है. Where do I write? I write it here. Say suppose force is in this direction and displacement is in this direction. Now theta is equal to how much? 90 degree. तो ऐसे केस में हम करेंगे फिर Fs cos 90, and cos 90's value is 0. So इस केस में work done 0. इसलिए कहते हैं work done when a planet moves across the sun, circular orbit. Work done in a circular motion, 0. Work done when a satellite is moving across the earth, whenever it's 0. Work done when an electron is revolving around the nucleus, 0. Circular, why 0? Because circular motion में the force is always, और displacement कैसा जा रहा है? Sorry, the displacement is in this direction. The force is the centripetal force. Displacement is always in this direction. So 90 degree. इतना तक समझ में आया? And one more scenario they will give you. Say suppose force is in this direction, displacement is in this direction. Spring force. हम जिस साइड दबाते हैं स्प्रिंग उल्टा आना चाहता है, हम इस साइड खींचते हैं स्प्रिंग उल्टा जाना चाहता है. So in this case your theta is how much? 180 degree. So again we put the same formula, Fs cos 180, and cos 180 is -1, so we say negative Fs. So from here that difference comes. तो आपके लिए जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर में दिमाग मत ज्यादा घुमाओ. It's a scalar quantity. What is the unit? Then when theta is equal to 0, work is equal to Fs. When theta is equal to 90 degree, work done should be equal to 0. And when theta is equal to 180 degree, work done is equal to negative Fs.
This part again in 11 you'll study. Don't break your head too much on that because your book doesn't say anything about cos theta and all as of now. So you should remember. Now tell me, define work. Work is a scalar quantity. अगर कोई पूछे आपको what is work? Work is said to be done when the point of application of force, अंगद का कान, moves along the direction of the force. So work is given by the scalar product of two vectors. The two participating vectors are force and displacement. The two participating forces are known as, vectors are known as force and displacement. While force is in Newton, displacement is in meter, लेकिन work का unit क्या होता है? Joule. आपको ये भी question पूछ सकता है, define 1 joule. 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body by a displacement of 1 meter along the direction of force. हमेशा along the direction of force. ये याद रखिए. यहां तक कोई दर्द है? बोलिए. एनी इशू? नो. चलें अगले स्लाइड में. इसको भी पीपीटी करके दे देंगे आपको, पीडीएफ कर देंगे इसका. जैसे बोलते फिर और लिखोगे नहीं, इसलिए मैं नहीं करता हूं. चले नेक्स्ट. ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड नो is a concept in which you should know work and energy are interdependent or interrelated items. वर्क की यूनिट भी जूल होती है बेटा, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है. ओके, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ बॉडी कैन डू is equal to the amount of energy that it spends. Okay, work done on a body is equal to the amount of energy that it spends. हमेशा याद रखिए. और जब हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो बॉडी एनर्जाइज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टेक ए स्प्रिंग नियर ऋषभ's फेस और ऐसे दबा के रख दो. अब उसका मुंह ले आएंगे, ठपाक करके मारेगा ना स्प्रिंग, बिकॉज वी हैव डन वर्क ऑन द स्प्रिंग. The spring is now energized. So if you spend work, work cannot be destroyed. The work gets converted into energy, है ना? And if you spend energy, you can do work. जैसे देखो, जैसे मान लो हमारे पास, let's say we have a ball out here. What is the mass of the ball? M. Agreed? M mass का ball move कर रहा है with the initial velocity of how much? U. M ball mass move कर रहा है initial velocity of how much? U. Then let's say a net force F acts on it. Net force, overall एक force act कर रहा है. तो हमने तो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? Whenever you hear about a net force, then there has to be a net acceleration. और ये मैं नहीं, न्यूटन बोल के गया है, father equal to mother equal to ma. Force आएगा तो acceleration आना ही पड़ेगा. Mass तो constant है. तो ये बॉडी u वेलोसिटी से जा रहा था, मस्त से u वेलोसिटी से जा रहा था, करके मार दिया उसको पीछे से, कोई फोर्स लगा दिया. तो ये बॉडी क्या है? ये बॉडी आगे चला जाता है, मास तो उसका वही रहता है. इतने में उल्टी तो नहीं कर देगा ना, उल्टी किया तो मास भी घटता है. वो 11 में आप पढ़ेंगे. रॉकेट प्रोपल्शन हुआ, नीचे से प्रोपेलेंट भी छोड़ रहा है. आपको बताया तो बच्चे को वॉमिटिंग एंड डायरिया एक साथ हो गया और बच्चा जा रहा है, तो बॉडी का मास भी घट रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जाते जाते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v. क्लियर? और यहां से यहां तक दिस बॉडी हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच? s डिस्टेंस कवर किया है. स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a आ जाएगा पिक्चर में. स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन means we can apply Suvat equations in this case. Straight line motion, all Suvat equations can be applied. So let us say, let's first see what is the kinetic energy of the body. ठीक है, इस kinetic energy को दो भाग में देखते हैं. पहले बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mu square. mu square, this is the initial velocity. ठीक है ना, this is the initial kinetic energy. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो? हाफ mv square, है ना? तो we are thinking acceleration is in along this line. So velocity will increase, force is side में, force favor कर रहा है. तो so in this problem it is automatically understood that v is always greater than u. So the final velocity is more. So final kinetic energy is more than the initial kinetic energy. So let's try to find out what is the change in kinetic energy. Delta Ke. Delta stands for what beta? Change. Okay. Change in kinetic energy क्या हो जाएगा? Kef minus Kei. बोले तो half म v स्क्वायर माइनस हाफ म u स्क्वायर. ठीक है ना?
और ये कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इतना रहने दीजिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा सुबैट भी लगाते हैं। सुबैट लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, अब यहां से ये भी लगता है ना, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाइज। तो यहां से क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। गजब फाइंडिंग हो गया भाई साहब, गजब फाइंडिंग। ये देख रहे हैं, ये वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर को यहां पर डाल देते हैं, घुसा देते हैं, हाफ एम इंटू 2as। वाह जबरदस्त। क्या हो गया, दू ने दू को काट लिया, अरे माँ फिर से आ गया, माँ बोले तो फोर्स है ना, और एस बोले तो एस। क्या ये चीज ही डब्ल्यू नहीं है? तो जितना एनर्जी खर्चा करते हो उतना ही काम करोगे। मजा आया? द वर्क डन, यही आप 11 में पढ़ोगे, प्रूफ द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ बॉल मूविंग ऑन अ यूनिफॉर्म ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये ग्रेड 11 प्रूफ है, आपने 9 में कर लिया। If a ball is moving on a uniform on a plane surface with a body m, पर इसमें एक चीज है, you assume that the mass of the body remains constant। ये specific case है, और अभी हम बच्चे हैं, हमारे लिए इतना ही ठीक है। Later on when we show this for any propellant type or any other thing, a cow is moving along with it, it is also dumping its gobar, so the cow's mass is reducing। मजेदार होना चाहिए ना हर चीज, तो उसमें ये वाला लागू नहीं हो जाएगा। So you see, if the what did we try to prove in this? We tried to prove that a body's work is equivalent to the energy spent on the body। अगर आपने जितना एनर्जी खोया उतना ही आप वर्क करेंगे, या फिर इसलिए दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों का यूनिट सेम होता है। You can just check up if you don't believe। Let's just if you just check by units, okay, just 1 minute, huh? I'll just change this and come back। Let's check by unit। What is work? Work is equal to force into displacement। force क्या होता है बेटा, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना, इंटू मीटर। क्लियर है? तो कितना हो गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी देखो तो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम का क्या हो गया, केजी, वी स्क्वायर बोले तो मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, बोले तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। वाओ, दोनों एक ही चीज है। चलो, वी डोंट ट्रस्ट यू, वी नेवर ट्रस्ट यू, विल चेक बाय पोटेंशियल एनर्जी। करो ना, कौन मना किया, mgh, m बोले तो kg, g बोले तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, यहां चेक कर लो, और कैसे भी ले लो, हाँ वही आएगा, समझ में आया? सो इसको, ये वाला चीज समझिए आप, the energy that you spend is always equal to, in fact you can have one derivation, derive the expression for kinetic energy। The expression for kinetic energy is also derived like this। Suppose there is a ball, we'll see that now। अभी वर्क क्लियर हुआ? तो वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क को जन्म कौन देता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक वेक्टर प्रोडक्ट, ना स्केलर प्रोडक्ट करके दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, पर उनका जो किड होगा वो किड का नाम होगा स्केलर, एंड दैट किड इज नोन एज वर्क। यूनिट इज नॉट न्यूटन मीटर, जूल्स, ओके, न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट होता है। एंड देन the amount of work that a body can do is very literature wise also ना, मेरे अंदर जितनी एनर्जी उतना ही तो मैं काम करूंगा। ये बात अलग है कि आपके जनरेशन में आप थोड़े से लेजी भी हो, तो आप थोड़ा सा एनर्जी छुपा देते हो और काम नहीं करते हो। अदरवाइज अ बॉडी इफ इट dispenses all its energy, it can do work worth its energy, and that's what we have proved here। A body was having an initial kinetic energy half mu square, final kinetic energy became half mv square, energy spent is final minus initial, and that Sasura came down to be the work done on the body। Clear? और वर्क में कुछ पढ़ने लायक हमारे पास है नहीं, ठीक है। अब कुछ केसेस हो सकता है, वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन द सेम डायरेक्शन, वर्क डन इज इक्वल टू एफएस। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, वर्क डन इज इक्वल टू 0। वो जो कूली वाला एग्जांपल दिया था आपको, राइट ना, नो पोर्टर डज अ वर्क, और हो गया ना, एक बार समझ में आया था पोर्टर वाला एग्जाम्पल। देखो पोर्टर वाला इन्होंने नहीं देखा, आपको भी दे देते हैं। पोर्टर वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा हमेशा। आप रेलवे स्टेशन में जाते हो ना, तो आप एक पोर्टर हायर करते हो, ऐसे पोर्टर को आपने हायर किया,
और पोर्टर को क्या दे दिया, इतना सामान दे दिया उसके सर पे, है ना, और पोर्टर आपके साथ चलना शुरू कर देता है। चलिए तो चलाते हैं पोर्टर को हमारे साथ। पोर्टर किस साइड जा रहा है, पोर्टर का डिस्प्लेसमेंट ये साइड में है, और पोर्टर पे वेट कैसे एक्ट कर रहा है, वेट इज द फोर्स, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सामान छोड़ने के बाद आप पोर्टर को बोलते हैं आपको तो पैसा नहीं देंगे, आपने काम ही नहीं किया है। पोर्टर बोलता है इतना पसीना बहा के आए हैं, तो आप उसको फिजिक्स समझाते हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका फोर्स है, और इसके बीच में कितना है 90 डिग्री। सो वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos 90। आपने तो जीरो वर्क किया है, आपको पैसे ही नहीं देंगे। इट्स करेक्ट एक्चुअली। क्लियर? यहां वर्क खत्म करें, इस तरह से रिवीजन करेंगे। अब आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप घर पे आगे जाइए और इसी को और पढ़िए। ठीक है, हो गया। चलो अब नेक्स्ट कहानी पे आते हैं। एनर्जी अर्थात ऊर्जा। और क्योंकि आप वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में बेसिकली आप मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे। वैसे तो एनर्जी बहुत तरह के होते हैं। अच्छा, एनर्जी के बारे में कुछ चीजें। एनर्जी is always defined by the law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to the other. है ना? Life is a race. Energy can always be converted from one form to the other, and energy is never destroyed nor be created. Total energy of the universe is same. अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज सोचो। मैटर होता है ना, मैटर, दुनिया का सारा मैटर, अगर आप सारा एनर्जी मान लो आप ऐसे करके एक जगह पे अगर आप ऐसे रख दिए ना, ये मैटर बनता है। सोचो मजा आएगा। सारा एनर्जी को अगर आप एक जगह ले आओ, व्हाट इट बिकम्स मैटर। और इस मैटर को अगर आप लाइट के फ्रैगमेंट में बिखरे हो तो वो होता है एनर्जी। वही आपका होता है जो आप पढ़ते हैं ना, E equal to mc square. That c square is the speed of light, m is the mass of the matter, and this is the energy associated. अगर मैटर को हम लाइट के स्पीड में बिखरे तो पूरा एनर्जी में कन्वर्ट। यही सब वॉर में, महाभारत, सेम कॉन्सेप्ट ओनली। Those astras were like that only. Matter used to be scattered under the speed of light. And any body which can travel more than the speed of light is actually time traveling. The fastest a body can go is the speed of light. जब आप लाइट की, अब आप क्यों बोलते हो कि the next year's December 31st will take how many 365 more days, because that is the fastest light is traveling. If you can travel faster than that, आप वो पीरियड देख के आ सकते हो। पीरियड ऑफ टाइम, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज डिजाइन बाय अस। डॉग को थोड़ी पता है आज 31st दिसंबर है। Humans have only two knowledge, that they will die one day, they know. No animal knows that it will die one day. Only we know we'll die one day. That's why we have a concept that something is reducing in our life. What is that? Time. Dog तो यही सोचता है कि कभी कभी लाइट जलता है घर में, कभी कभी बाहर से। डॉग को तो नहीं पता है आज 31st दिसंबर। ठीक है, तो ये सब हो गए ज्ञान की बात। आइए एनर्जी की बात करते हैं अभी। So we are talking about mechanical energy, and this mechanical energy for your grade 9 level, again we'll have two bachas. One is known as the potential energy and one is known as kinetic energy. पहले दोनों के बारे में पढ़ते हैं। Okay, kinetic energy. What is potential energy? Potential energy को भी आगे जाके हम दो भागों में देखते हैं। एक होता है EPE और एक होता है GPE. Potential energy is always the energy possessed by a body by virtue of its position. लेकिन उसको और बढ़िया डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। Potential energy is always the energy possessed by a body by virtue of its position. हाँ, पोजीशन हो सकता है, वही शेप, उस शेप वाली बात के लिए इसको किया है। और शेप बढ़िया, आपने शेप वाली बर्ड को ले लिया है। इसके लिए आपको एक और पाजी क्लास में हूँ, क्लास के बाद फोन करता हूँ 6:30 बजे। ओके, कोई अर्जेंट तो ना? हाँ, ठीक हो गया। तो पोजीशन और शेप के लिए वन मोर चुम्बेश्वरी पॉइंट है ये, इसको देखेंगे आगे। पोजीशन, आदमी का पोजीशन ऐसा कर दो, बॉडी का पोजीशन ऐसा कर दो कि उसमें एनर्जी है। अब इसके सर के ऊपर एक पत्थर मंडराता है, पत्थर का पोजीशन, काट दिया रस्सी को तो पत्थर इसके सर पे गिरेगा, सर का हो जाएगा ब्रास। दैट मींस पत्थर इज एनर्जाइज्ड राइट नाउ। ये पेन, इज इट एनर्जाइज्ड राइट नाउ? नहीं, पर ये रोलिंग मोशन में है। ऐसा पोजीशन दे दिया इसको, ऐसे स्लोप में दे दिया तो इसके अंदर एनर्जी तो है, ये आ जाएगा साथ साथ। किसी भी पोजीशन, once you get energized by virtue of position, your position is such. Now this fellow
हैज पुट अप ए न्यू वर्ड कॉल्ड शेप. अब उसको भी देखेंगे. नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी को इसलिए हम दो भाग में देखते हैं. ईपीई जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा हम बोलते हैं जीपीई जो कि है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल, ये जो पोजीशन वाली बात होती है ना, ये ज्यादातर हम इसके साथ ही देखेंगे. मतलब जब कोई बॉडी पे हाइट डाल दो, कैसा, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, है ना. यहाँ पे जय को सुला दो, बहुत अच्छा से सो रहा है, और यहाँ पे पैर में एक आम लटका दो. ठीक है, आम कितना हाइट पे है सर? सर आम एच हाइट पे है. छोड़ देता नहीं तो क्या हो जाएगा, शरीर का सर पे आके गिर जाएगा. आम में एनर्जी है, समझ में आ गया? आम में एनर्जी है, ठम करके आगे इसके सर पे गिरेगा. ये हो गया पोजीशन. ठीक है, और एक कैसे कर सकते हैं, ऐसा ही कर दो और जय को यहां ले आओ. हीरो की तरह चाल दे रहा है, और यहां पे किसी भी तरह एक स्प्रिंग को कंप्रेस करके रख दो. जैसे स्प्रिंग को छोड़ देंगे, ठाप करके उसके मुंह पे मारेगा. ये है शेप. ओरिजिनली स्प्रिंग का शेप कैसा था? अ स्प्रिंग इन नॉर्मल वे इज लाइक दिस. आपने स्प्रिंग पे एक फोर्स दिया ऐसे. नाउ द स्प्रिंग वांट्स टू डिस्प्लेस दिस वे. व्हाट इज दैट एग्जांपल? माइनस वर्क डन. वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज नेगेटिव, not spring force. What is the spring force? When you give a force, so this 11 में पढ़ोगे, when you give a force on this side, the spring force wants to come on this. उल्टा आना चाहता है, उसको करेगा. ठीक है ना. so work done, तो ये इसको मारेगा आके. ऐसे केस को हम बोलते हैं, ऐसा जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेन्ड. आपने सिस्टम को कंस्ट्रेन करके रखा है. छोटे काल में वो बंदर होता था ना, डुक 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 बजाता है, तो आप चाबी देते हो उस बंदर को. चाबी दे के आप क्या कर रहे हो? यू आर बेसिकली कॉइलिंग अ स्प्रिंग लाइक दिस. जितना चाबी दो ये कॉइल हो गया. नाउ द स्प्रिंग वांट्स टू ओपन अप, बट द टॉय डज नॉट लेट इट ओपन अप कंप्लीटली. इट्स एनर्जाइज्ड ना, इट विल लेट इट ओपन अप थ्रू सम स्मॉल गियर. तो बंदा टुक 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 करते रहता है. जब चाबी पूरा खत्म हो गया, बच्चा फिर रोना शुरू करता है, फिर चाबी देता है, एनर्जाइज करो. ऐसे एनर्जी को, या फिर रबर बैंड हो गया, खींच लिया. Elastic potential energy. Elastic potential energy is whenever the body is put into constraint. Constraint समझा ना? मूवीज में बोलते हैं ना, एक बार मेरे हाथ खोल दे तो आप कंस्ट्रेंट में हो. जब तक वो बंधा हुआ है, he is very energized है. एक बार मेरा हाथ खोल के देख, मर्द है तो जैसे हाथ खोल देता है, मारपीट करना शुरू कर देता है. he is constrained. Whenever you constrain a system, उसके पास एनर्जी आ जाएगा. बच्चे को ले लो, बच्चे के साथ मारपीट करो, पकड़ लो उसका, बहुत एनर्जी. That is potential energy, but that we call as elastic potential. धनुष को ऐसे खींचा, अब धनुष जाना चाहता है. मैं अपना मुंह बंद, इसमें बहुसांस के बीच में भी होता है, मैं अपनी मुंह बंद करके रखी हूं, इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं जुबान नहीं लड़ा सकती. कंस्ट्रेंट, कैसे छोड़ दिया, बोलना शुरू कर दिया आपने. ये भी एक तरह का एनर्जी है. चलिए नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल. नाउ दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पी. इसको हम यहां इतना नहीं पढ़ते हैं, इसको 11 में पढ़ते हैं, पर इसको पढ़ेंगे. एक जीपी होता है हमारा इक्वल टू, अगेन वर्क डन. व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. देखो अभी वो कितना दूर पे है, h दूर पे है. फोर्स क्या है? ई अम्बुआ का मास है m, और खींचा जा रहा है g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से. तो इसका वेट कितना हो गया? mg. एंड वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स. So our work done is force mg multiplied by the displacement h, so which is equal to mgh, and work is nothing but the same concept as energy. So your pe का फॉर्मूला होता है mgh. लेकिन 11 में आप पढ़ोगे, this is change in p. Actual p of a body can never be measured because the p at 0 is 0. और यहाँ पे so change in p, we always measure change in potential, not. क्लियर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन. दैट पोजीशन कैन बी ड्यू टू अ हाइट और कैन आल्सो बी ड्यू टू अ कंस्ट्रेंट. इफ योर एनर्जी इज कमिंग इनटू द बॉडी बिकॉज ऑफ अ कंस्ट्रेंट क्रिएटेड, देन इट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. रबर बैंड, बो, स्ट्रेच बो, देन स्प्रिंग, ये सब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. एंड इफ इट इज ड्यू टू अ हाइट, इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इन ग्रेड 9 वी आर डीलिंग मोर विद जीपी ओनली. जीपी का फॉर्मूला कितना होता है? mgh. ठीक है. और ऐसा एक और एनर्जी है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी.
काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, मोटियन, मोटियन, माय इंग्लिश इज बैड, मोशन, जब तक मोशन नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ टाइम्स एम वी स्क्वायर, हाफ टाइम्स एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो अगर बॉडी का वेलोसिटी जीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो। अगर बॉडी कोई हाइट में नहीं है, नीचे है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। एंड द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल व्हेन इट्स एनर्जी इज मिनिमम। एनर्जी ज्यादा, कैसे इसको याद रखेंगे, आपके घर में छोटा भाई है, जितना देर जागता है उतना देर उत्पात करता है, रात को थक थका के सो जाता है, तब घर ठंडा हो गया, स्टेबल, कोई चीज इधर उधर नहीं जाता, भाई सारा एनर्जी निकल गया, सुबह उठ के उसको पूरा एनर्जाइज हो जाता है, टान घूमते रहेगा पूरा घर पे। सो व्हेनेवर द बॉडी इज हैविंग एनर्जी, द बॉडी इज ऑलवेज अनस्टेबल। एवरीवन वांट्स टू हैव लो स्टेट ऑफ एनर्जी, है ना। तो अगर आपका एनर्जी जीरो, अच्छा यहां से एक और चीज भी हम डिफाइन कर सकते हैं, अ रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। बेटा व्हाट इज मोमेंटम, इक्वल टू, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। आइए तो इसको हम कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाफ, यहाँ पे इसको m स्क्वायर कर देते हैं, v स्क्वायर कर देते हैं, आपने एक m बढ़ाया तो एक m डिवाइड भी कर दिया, समझ में आया, m v स्क्वायर ना, क्या होगा, एक m बढ़ाया तो एक m कम भी कर दिया। तो ई ससुरा को कहा लिखे, E2 और m को इस साइड ले जाओ, 2m ke, तो इधर क्या हो गया, m स्क्वायर v स्क्वायर विच इज नथिंग बट p स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड, 2m multiplied by ke makes it 2m ke. Yes, momentum is always equal to root of 2m ke. ये आपको फिर 11 में आएगा, अभी से जानवर को देख लो तो फिर 11 में वो डरावना नहीं लगेगा, तो 11 आते ही I've never seen him, I was so afraid, see it now, 2m ke. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी देख लिया। देन एक सवाल आ सकता है, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा आपको, जो सबको आपको ट्रिक करता है, कैसा प्रॉब्लम रहेगा, ओके, इफ यू वांट टू कॉपी समथिंग प्लीज, दे विल गिव यू सम न्यूमेरिकल्स इन व्हिच दे विल आस्क यू, okay, in which they will be asking you that find the work done। ये हो गया कॉपी, बड़े ये एक टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं where they will ask you to calculate work done, calculate work done, ये कैलकुलेट करने बोलेगा आपको। और आप क्या हो, आप हो सीबीएसई के बारात में आए हुए बच्चे, आपका दिमाग सबसे पहले सोचता है कि फॉर्मूला क्या है, फिर आप बोलते हो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो प्रॉब्लम दिया जाएगा आपको, उस प्रॉब्लम में फोर्स का नामो निशान नहीं रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसा होते ही पप्पू का मुंह ऐसा हो जाएगा, लेकिन पप्पू को कुछ दिया रहेगा जो पप्पू देख नहीं रहा है। तो यहाँ आपको चाहिए देखने वाली नजर। तो इस देखने वाली नजर में आप देखिएगा, मास दिया रहेगा, u दिया रहेगा, v दिया रहेगा। हैव यू अंडरस्टूड? इसका मतलब है यही फॉर्मूला नहीं भाई साहब, डेल्टा के ई के फॉर्मूला से वर्क निकालना है। अभी अभी हमने किया था ना, द एनर्जी स्पेंड बाय द बॉडी इज ऑल्सो द वर्क डन। यानी कि यहां हम क्या करेंगे, वर्क विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और अगर आपको ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा किसी का आ जाए तो f और a भी आ सकता है। भूलिएगा मत, क्या नहीं भूलना है, ये जो चीज है, एंड इन ग्रेड 9 वी नो ऑल द मोटियन, मोटियन मींस मोशन, जो भी ग्रेड 9 में है वो सब स्ट्रेट लाइन में होता है। जो भी एक्सीलरेशन है वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है। यानी कि चैप्टर 1 में चले गए, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ए है, तो इसका मतलब है यहाँ ये इक्वेशन भी अप्लाई हो जाएगा टू एस।
पास। ऐसे सोच के प्रॉब्लम कीजिए, अपने आप बनता है। डोंट बी अ scapegoat and just think like that. Think a little bit ahead. Force, dear sir, I was trying to find out, sir, forces, this problem is out of syllabus. Ma'am told me like this, sir, this question was like this. अरे ढक्कन, इसमें मत सोच, ये में भी सोचो, यहाँ में भी हो सकता है आंसर। समझ में आया? Yes, sir. So like the brat. A brat has come. Where is brat? Brat, sorry, sir. Where is brat? Brat is not to be seen. You come up. Why she's going under the table? Because it's comfortable. Go under the bed then, na? It's more comfortable. Yes, you can get inside the cupboard also. It's more comfortable. Yes, helmet cupboard. Yes. Open at your own risk. ये समझ में आया फिर? Any question out here? तो कुछ वर्ड के प्रॉब्लम्स ऐसे रहेंगे जहां आपको they will not specify force and displacement, but they will be specifying things like they'll not tell you kinetic energy upfront. इतना spoon feeding भी नहीं करेगा, but they'll tell you about mass U and V. So you are supposed to apply your knowledge and solve the problem. ठीक है? अब नेक्स्ट चीज, एक और चीज जो इसमें हम देख सकते हैं, प्रूफ फॉर दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको प्रूफ करके देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन मतलब दिस थिंग नेवर गॉट स्पेंट। व्हाट इज कंजर्वेशन? समथिंग, कंजर्वेशन ऑफ माय पॉकेट मनी throughout the morning till evening, though I ate many things, my pocket money is same as it was during the start of the day. तो यही तो कंजर्वेशन है। और इस कंजर्वेशन को जनरली हम प्रूव करते हैं किसमें? फ्रॉम अ बॉडी ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड मैंने समझ गया ना, ड्रॉप्ड, रिलीज्ड, ये सबका एक ही मीनिंग होता है, U इक्वल टू 0। हाँ, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, तो आइए इस सिनारियो को भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए इतना ऊंचाई से हम बॉल को गिराते हैं, है ना, इतना ऊंचाई से। ओके, राइट, दिस इज आवर ग्राउंड लेवल। सो वी हैव अ बॉडी। फर्स्ट पोजीशन में बॉडी एकदम ऊपर है। सर जब ऊपर है तो इसका हाइट कितना है? h हाइट है। अगली बार बॉडी कुछ यहां तक आ चुका है। बॉडी कहां पे है सर? सर अभी बॉडी यहां पे है। और अगला बार बॉडी एकदम नीचे आ चुका है। तीन सिनारियो, ए फॉर अच्छा, बी फॉर बीमार और सी फॉर खाई डंडा चार। ठीक है, ए बी सी। तो ए में बॉडी का मास है म, यहां भी सेम बॉडी है म, यहां भी सेम बॉडी है म। यहां से यहां तक कितना ऊंचाई है सर? बस सुसाइड कर दे सर, h है सर। यहां से यहां जब बॉडी आ गया तो इट इज x फ्रॉम द ग्राउंड। x फ्रॉम द ग्राउंड मींस फ्रॉम द टॉप इट हैज कम हाउ मच? कितना? h माइनस x। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे h की वैल्यू जो है हमारी हो गई है लड्डू। तो तीनों केस में हम दिखा देंगे कि बॉडी का एनर्जी सेम रहता है। तो हमेशा याद रखिए, the total energy of the body is sum of the PE plus the KE. Understood? Sum of PE plus KE. आइए सिचुएशन वन। सिचुएशन वन में U की वैल्यू कितनी है? 0। दैट मीन्स A में अगर हम काइनेटिक एनर्जी को निकालने की कोशिश करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज 0 बिकॉज द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अभी बॉडी को रिलीज नहीं किया है, बॉडी जस्ट होल्ड करके रखा हुआ है। इसको बालकनी ले गया और आपको पुटिंग टू रेस्ट। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? मागाह। और टोटल एनर्जी कितना हुआ? मागाह। ठीक है, दिस इज एट ए, राइट। लेट्स कम टू बी। बी में आते कुछ मजेदार चीज हो गया है। हमें यहां पे चाहिए, इस पोजीशन पे चाहिए, एट दिस पोजीशन, एट दिस पोजीशन। इसकी पी डिफाइन करते हैं। पी की कितना हो जाएगा? mgx, how much from the ground you are? P is how much? mgx। अच्छा, इसका ke, तो थोड़ा सा यहां करते हैं तो डायग्राम खराब हो जाएगा। at b, let's try to find ke। ke is equal to half mv square। Do you agree? Okay, good। और इसमें वो भी इक्वेशन लगाते हैं, v square equal to u square
प्लस, नीचे आ रहे हो तुम, हाँ अंगद नीचे आ रहे हो, ग्रेविटी तुम्हारे साथ है, 2 इंटू ए मतलब जी, और कितना डिस्टेंस आप आए, h minus x डिस्टेंस आप आए, ठीक है, but your u is 0 because initially it was dropped, so v square is equal to 2g h minus x. इसका मतलब ke की वैल्यू कितना होना चाहिए, हाफ m v स्क्वायर, और v स्क्वायर क्या है 2g h minus x, और 2 ना 2 को काट दिया तो कितना रहा mg h minus x, लिख दें यहाँ पे, तो इसकी ke कितनी है, ke है mg h minus x means mgh minus mgx. अब हम t देखिए तो कितना होता है, t में ई ससुरा को काट लेगा, कितना हो गया मगह है सर, टोटल एनर्जी सेम हियर आल्सो, दिस इज एट a एंड दिस इज एट b, ठीक है. अब c पे आते हैं, c पे आते आते यू हैव नो हाइट, सो योर p इज इक्वल टू 0. अच्छा, c के लिए जो v स्क्वायर होगा, c का v स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज एट c, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g, अब ये पूरा h आएगा, पूरा h आएगा, है ना. तो इसकी v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई बेटा 2gh, यानी कि आपकी ke की वैल्यू कितनी हुई, हाफ m v स्क्वायर, यानी कि हाफ m 2gh, और 2 ने 2 को काटा तो काइनेटिक एनर्जी बन गया मगह. तो यहाँ पे भी लिखिए क मगह, ट कितना बना मगह, आए भी सबसे, बॉडी ने कोई एनर्जी खोया ही नहीं ओवरऑल. So if the potential energy from maximum came down to 0, at the same time the kinetic energy picked up from 0 to maximum. So the total energy of a body at any time, ऊपर देखें, लड़के का पास 6 रुपया था, सुबह भी गोलगप्पा खाया, दोपहर को भी खाया, शाम को भी खाया, खर्चा कुछ भी नहीं हुआ. That is the law of conservation of energy. Conservation of money means what? You did not spend your money, but however money was converted from one form to the other form. लेकिन नोट उतना ही था. ये भी आपको कभी कोई डिराइवेशन दिया तो दे दिया. Prove that the law of conservation of energy for a freely falling body. हाँ दिवांशु, YouTube कैसा चल रहा है, देखो चौंक गया लड़का पूछते ही. कितना एपिसोड, 2 एपिसोड हो गया, कितना बढ़िया लग रहा है ना कहानी सुन के. हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी जानते हो, छोटा वाला मुन्ना हमारे घर के बाहर दौड़ रहा था ना, उसका बुआ देखो काइनेटिक एनर्जी, बोला मत जाओ, जाने से धर लेगा. कौन धर लेगा, एक्सीलरेशन धर लेगा, जूजू है वो, घर के बाहर बैठा है ऐसे. इसको देखो एकदम इंटरवल के जैसा है, वॉशरूम वॉशरूम जाके आया जाए, पॉपकॉर्न उपकॉर्न लाके, है ना, मजा हो रहा है. कल यहाँ पे एलईडी लगा देंगे, एग्जिट एग्जिट, सिनेमा थिएटर जैसा फीलिंग आएगा थोड़ा सा, ठीक है. एनर्जी खत्म हुआ, इसके कुछ नहीं. अब बात करते हैं, हाँ काइनेटिक एनर्जी डिराइव करना है तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड कर लेते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी डिराइव करते हैं, डिराइवेशन ऑफ के फॉर्मूला विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे मीडियम ले लिया, मान लो मीडियम ले लिया, ठीक है, एंड से there is a ball, sorry, एक बॉडी लेते हैं, there's a body which has entered this medium. मान लो कैसा है, गोबर के अंदर घुस गया जैसे. अब बॉडी किससे मूव कर रहा था, हंसते ही हो, बॉडी m नाम की बॉडी v वेलोसिटी से मूव करते आ रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. यहाँ ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, v कांस्टेंट वेलोसिटी से m नाम का बॉडी मूव करके आ रहा है. किधर घुस गया, गोबर के अंदर घुस गया है. गोबर के अंदर घुसते स्पीड उतना रहेगा नहीं रहेगा. गंदे एग्जांपल से सोचोगे तो आपको याद रहेगा, स्पीड उतना रहेगा नहीं रहेगा. क्यों, क्योंकि गोबर अभी आपको देना शुरू कर देगा क्या, एक ड्रैग फोर्स देना शुरू कर देगा. वो फोर्स किस साइड एक्ट होगा, इस साइड एक्ट हो रहा है ना, गोबर इस साइड फोर्स देगा. तो अगर फोर्स इस साइड आ रहा है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द काउ डंग स्लरी, सो डेफिनेटली द एक्सेलरेशन इज आल्सो एक्टिंग इन दिस साइड, व्हिच फॉर द बॉडी इज रिटार्डेशन. हम दौड़ के आ रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी में घुस गए गोबरवा के अंदर, स्लो मोशन में जाना शुरू हो रहा है ना, तो एक्सीलरेशन हमारे ऑपोजिट में एक्ट कर रहा है. तो ये बॉडी को क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन आना शुरू हो जाएगा.
और रिटार्डेशन होते होते ससुरा एक जगह जाके मुंह में गोबर पोत के इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर है? और जब तक इसकी वेलोसिटी 0 हुई तो इसने गोबर के अंदर जो भ्रमण किया है वो दूरी है s। स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय दिस फोर्स। सुनो ना, हमारे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली वी हैड सम काइनेटिक एनर्जी, डू यू एग्री और नॉट? Our this is so there was a initial kinetic energy. So थोड़ा इसको और अच्छे से करते हैं। So we had a KEI. What was our KEI? Half mv square. What is our KEF? 0. अरे गोबर पोत के रोक गए तुम, कैसे हाफ हाफ बोल रहे? तो डेल्टा KE क्या हुआ हमारा? हाफ m 0 स्क्वायर। सर कभी गलती थोड़ी करता है, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? फाइनल माइनस इनिशियल, सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? सो इफ यू सी द मॉड, अगर हम चेंज के मॉड को देखें, सिर्फ मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। मींस दिस बॉडी हैज स्पेंट एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर in order to move from here to here. As it has spent energy, इसका एनर्जी खत्म हो गया तो ये बॉडी तो रुक ही जाएगा, इसके अंदर एनर्जी नहीं है। अब इसने ये जो मेहनत किया ऐसे करके, इससे मेहनत बहाया, किसके खिलाफ बहाया? गोबर के फोर्स के खिलाफ। आज अगर गोबर दुश्मनी नहीं करता तो इसको तो ये मेहनत करने की जरूरत ही नहीं था। दैट मीन्स गोबर उसको ऐसे फोर्स कर रहा है, ऐसे मत आओ, और वो क्या कर रहा है? मैं तो आज गोबर में लिपटूंगा ही, वो आ रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे आते आते एक जगह जाके रुक गया, और तब गोबर कहता है, बोला था ना, पोत लिया अब गोबर मुंह में। Therefore, this energy that you have spent, this half mv square, this energy should be equal to work done by F. क्लियर है? अब वर्क डन बाय F देखते हैं। F का वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बाय F, W should be equal to F into displacement। हालांकि ये भी नेगेटिव वर्क आएगा, ये नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव। वाई? फोर्स इज ऑन दिस साइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑन दिस साइड। तो आप चाहे तो नेगेटिव नेगेटिव लेके कर सकते हैं, बट वी आर वॉरिड ओनली ऑफ द मैग्नीट्यूड पार्ट, ओके? तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमारा कितना आता है। फोर्स जो है, राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आपका एक्सीलरेशन कैसा है? योर just try to look at the force and the acceleration. The force is on this side, the acceleration is also on this side. Into displacement. अब आपका displacement लेकिन उस साइड में है, so the work done is always a negative work. Have you understood? ठीक है, अब इस s को देखते हैं। क्या था इक्वेशन? v square is equal to u square plus 2as। हमारे प्रॉब्लम में v square है 0 square और u square है v square, because the initial velocity was v, final velocity 0 plus 2। अब 2, अब आप a जब ले रहे हो ना, ये नेगेटिव a होएगा आपका, एंड डिस्प्लेसमेंट इज s। सो आपको कितना आ गया? v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as, है ना? तो s की डेफिनेशन क्या हो गई? हाँ, v goes to राइट, v goes to that side। ऐसे ही अगर आप v इज इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम प्लस v स्क्वायर इक्वल टू 2as। गुड, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग। हाँ, तो ये इसको साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो s इक्वल टू क्या हो गया? v स्क्वायर बाई 2 नहीं, 2a भी है, 2a है, और डाल दीजिए, कितना लिखे? 2a, a ने a को काटा, ठीक है? कितना हो गया? यही है वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू नथिंग बट द, हैव यू अंडरस्टूड? और कुछ नहीं है। अभी 5 मिनट है, शक्ति प्रदर्शन बाकी है ना, पावर 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 इज रिमेनिंग। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, इन एनी पोटेंशियल एनर्जी प्रॉब्लम मेक श्योर इट इज द वर्टिकल हाइट। हाँ, बच्चा सीढ़ी टक 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 उठ के आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, वो कितना हाइट उठा उससे मतलब है, किस रोड से आके उठ रहा है उससे मतलब नहीं है। वर्क में हमेशा हम बोलते हैं फाइनल
and initial position. So actually displacement is always the shortest straight line. चले last वाला. Last thing is all about power. Power is power. Power होता है basically energy over time. अब यहां गड़बड़ हो जाता है. ये एनर्जी हो सकता है कि आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है आप कितना एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं. जैसे अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. अगर हम एक गाड़ी की इंजन की बात करें तो वो एनर्जी डिलीवर कर रहा है. इट्स ऑल द सेम थिंग. सो व्हेनेवर यू बाय अ ड्रिल मशीन फ्रॉम Amazon, उसमें लिखा रहेगा क्या, 700 watts. 700 watts is it the energy delivered or energy consumed? Always energy consumed. Delivered energy आप मेजर ही नहीं कर सकते. उसका भी डेफिनेशन दे देते हैं. पहले इसको देख लेते हैं. पावर P क्या हो गया आपका, E ओवर टाइम T. तो P को हम बोलते हैं वॉट, एनर्जी है जूल, टाइम इज इन सेकेंड. What is 1 watt of power? If a body either consumes or delivers energy at the rate of 1 joule per second, या तो 1 joule per second पे उल्टी कर रहा है, या 1 joule per second एनर्जी पी रहा है, तो उसको हम पावर बोलते हैं. ठीक है. अब वो Amazon वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं. ये है, हम गए Amazon में और हमने खरीदा एक ड्रिल मशीन. इस ड्रिल मशीन में लिखा हुआ है 1500 वॉट, है ना. मशीन कभी भी, मशीन के पास कोई एनर्जी रहता नहीं है. मशीन जस्ट एनर्जी को कन्वर्ट करता है. तो इस ड्रिल मशीन को आप कहां कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक सॉकेट में. ये कितना एनर्जी पिएगा, 1500 जूल्स पर सेकेंड पिएगा. सो दिस इज कंज्यूमिंग. डोंट बी वेरी हैप्पी, हाँ ये पावरफुल मशीन, ये इतना तुम्हारा पॉकेट में जलाएगा. लेकिन अब आउटपुट, मशीन क्या है, हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे. पेन की निप से लेके पैंट की जिप तक, 3 रेट में बोलता है ना. तो ये भी वैसा ही है. He will convert that work. वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके क्या कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में. लेकिन इतना प्यारा ड्रिल मशीन तो आज तक बना ही नहीं है. ये ड्रिल मशीन जब होगा तब क्या होगा, गर्र साउंड होगा, साउंड एनर्जी में जाएगा. तो साउंड एनर्जी में जाएगा, हीट एनर्जी जाएगा, थोड़ा सा स्पार्क करेगा, लाइट एनर्जी जाएगा. तो कैसे देगा आपको 1500 का 1500. तो हम बात हैं एक टर्म जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी. एफिशिएंसी. हमारा लड़का रोज 2 रोटी खाता है, काम 1 रोटी का करता है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 50%. ये मशीन 80% एफिशिएंट है. मतलब यू मल्टीप्लाई दिस विद 15 5 75, 15 8 जा 120, 1200 एनर्जी ही आपको देगा. सर बाकी के 300 कहां गए, ई ससुराल लोग खा गए बाकी 300. तो आप जितना इस चीज को एफिशिएंट करोगे, ये लॉसेस कहते हैं ना, वी हैव मिनिमाइज द लॉसेस, यहां और ज्यादा वर्क मिलेगा. That is all about efficiency. So an efficient machine, if the machine is very efficient, then the machine is going to deliver, because you paid for 1500. Are you getting work worth 1500? No. So is there any machine, sir, which gives you 100% efficiency? Yes, sir. In Alice in Wonderland, स्वप्न लोक में ये सब चीजें मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं आइडियल मशीन्स. आइडियल मशीन, मेरा बच्चा आइडियल बच्चा है, हमेशा सत्य बोलता है, कभी पिक्चर नहीं देखता है, झूठ नहीं बोलता है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, सिनेमा नहीं देखता है, इधर नहीं जाता है, उधर नहीं जाता है, चुगली नहीं करता. ऐसा लड़का कहां से लाया आप, ब्रह्मदेव मेरे गोद में देके गए थे. ऐसे बच्चे तो कहीं पैदा ही नहीं होते. आइडियल बच्चा. लेकिन आपको कैसे बच्चे मिलेंगे, 65% efficiency. So I always say to a parent, as your child grows up and comes back home and tells you, "Mama, पता है आज ये हुआ," आप हमेशा efficiency को factor कीजिए. What he is speaking is 70% efficient speaking. 30% वो छुपा के बोल रहा है वो बच्चा. तो जब आप MYP में होते हैं, PYP, primary year program, है ना, पता है ना, EY is early years in school, then comes primary. PYP में मम्मा जब बोलता है तब efficiency 99 के आसपास रहता है. उसके बाद आता है MYP पे मम्मा पता है तब थोड़ा सा एफिशिएंसी कम हो गया, 80%, 20% छुपाता है. और जैसे ही बच्चा सेकेंडरी ईयर्स प्रोग्राम में आना शुरू हो जाता है ना, अब तो बहुत सावधानी से आपको सुनना है, क्योंकि अब जब वो मम्मा बोलता है ना, वो छुपाया नहीं है, जो बोला है उसमें भी एडल्टरेशन है. व्हाट
One is hiding the fact. That's not that dangerous. One is altering the fact. वो alter करेगा. ये हर मम्मी पापा को मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद किया हूँ ये. मेरी बच्ची ने भी मेरे साथ किया है, उसके बच्चे भी उसके साथ करेंगे और स्टाइल से करेंगे. We thought we were the most clever persons in the world, but one thing I bet, our generation was more clever than you in fooling people. आपका जनरेशन तो अब आज पता है ना, कल से जो बच्चे जन्म होने वाले हैं, जेन बीटा, जेन अल्फा भी, now Gen Betas will be born from tomorrow. So they say all the battle plans that we will write against your generation will be in cursive because you guys don't know how to read cursive, and we'll take the earth back from you. तो इतना ही है. घड़ी पे हुआ है 36 और देखिए तब तक हो गया है वर्क. अब इस चीज को क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग को रोकता हूं पहले. इसको आप घर में जाइए, इसका पीपीटी बन जाएगा,